Now it is your time. अब तो आपका समय मौजूद है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And all things are possible by God through Lord Jesus Christ. और हर कुछ संभव है मसीह यीशु के द्वारा. Hallelujah. Right now we are live in Facebook also and in Zoom. Wonderful. We had wonderful fellowship, wonderful worship, wonderful prayers with our Hallelujah. wonderful sister. Hallelujah. हालेलुया. मेरे प्रियो, सचमुच फेसबुक और जूम के माध्यम से हम सीधा प्रसारण में आपसे जुड़े हैं और धन्यवाद करते हैं उन अभिषिक्त बहनों का, डॉक्टर डेजी का और माया दीदी का, जो हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हुए और हमें आशीष दिया. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Just 5 minutes back we were joined in Facebook. और बस 5 मिनट पहले ही हम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं. Amen. आमीन. And I welcome every Facebook viewers who are watching me in Facebook. और हर एक फेसबुक के जो दर्शक हैं, जो हमें सीधा प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है. Oh, God bless you. आमीन. आमीन. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Wonderful. Wonderful. That's an awesome. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. This is a wonderful time we are. मेरे प्रियो, ये बहुत उत्तम समय है संगति में एक साथ एकत्रित होने का. I was just thinking, Brother Basant has taken a wonderful scripture. I think the Holy Spirit is moving very powerfully. और जब प्यारे भाई ने, बसंत ने, जब वो परमेश्वर का वचन लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य तरीके से हमारे मध्य में कार्य कर रहे हैं. See how the Holy Spirit works. देखिए ना किस तरह से पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं. Today I want to talk about humbleness and he quoted that scripture. हालेलुया. और निश्चय ही मेरे प्रियो, आज तो मैं सचमुच नम्रता, दीनता के विषय में बात करूंगा और भाई बसंत ने निश्चय ही आज एक वचन भी दे दिया. Why, Pastor, you want to talk about humbleness? अब एक प्रश्न उठता है मेरे प्रियो, नम्रता के विषय में बात करना क्या जरूरी है? Is that something wrong is going on in church? That's why you are talking about namrata? कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि अरे कलीसिया में कुछ सही नहीं हो रहा है, इसी से तो हम नम्रता के विषय में बात नहीं कर रहे हैं? Because whenever something goes wrong in the house of God or goes wrong in the family, then only people use this particular word humbleness. Be humble, be humble, be humble. लोगों के दिमाग में ये बात बैठा होता है कि कलीसिया में या घर परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो सही नहीं चल रही है, तो लोग इस्तेमाल करते हैं कि नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ. Hallelujah. आमीन. You know what happened when you become humble? You are quiet. तो याद रखिए, जब आप नम्र और दीन होते हैं तो आप अपने आप को शांत कर लेते हैं. Okay? Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. But today I'm going to talk in a different way, okay? परंतु आज तो बिल्कुल अलग तरीके से मैं बात करूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. We have to be humble. और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें नम्र होना है. And let me tell you something. और मुझे आपसे कुछ कहना है. Man is not an humble person. याद रखिए, अगर मनुष्य के विषय में मैं कहूँ तो कोई भी मनुष्य सचमुच दीन है नहीं, नम्र है नहीं. There is none. कोई भी नम्र और दीनता में नहीं है. Hallelujah. ये सत्य है. Amen. आमीन. Because all has done sin against God and they fall short before His glory. और क्योंकि ये सत्य है कि सब ने परमेश्वर के खिलाफ पाप को किया और महिमा से रहित हो गए. Because of our sinful nature, we are not humble at all. याद रखिए, हमारे पाप में स्वभाव ही के कारण हम सचमुच नम्र और दीन है ही नहीं. Amen. आमीन. But through Lord Jesus Christ, परंतु मसीह यीशु के द्वारा God always help us to become humble in His presence. हालेलुया. और परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं कि हम सचमुच नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to read that wonderful scripture which Brother Basant has quoted, and I want to read from James chapter 4 and verse 10. याकूब 4:10. और सचमुच मैं आपके लिए याकूब 4 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ना चाहता हूँ. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र यानी दीन कर लो ताकि वो तुम्हें ऊंचे पे उठाए. Amen. आमीन. Hallelujah. आमीन. Yes, of course, people want to become humble, but
they have no power that God will lift them up. ये Hallelujah. सत्य है मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य ये चाहता है कि वो नम्र और दीन हो जाए, परंतु मेरे प्रियो उनके अंदर कोई भी सामर्थ्य या ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर ले। If man wants to practice humbleness, the people of the world will never lift him up. तो Hallelujah. याद रखिए, अगर मनुष्य अपनी शक्ति से इस चीज का व्यवहारिक तौर पर करने का कोशिश करे कि वो नम्र बने, तो याद रखिए संसार के लोग तो उसे ऊंचे पे नहीं उठाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। But लेकिन when people of God become humble through Lord Jesus Christ, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन मसीह यीशु के द्वारा जब नम्र हो जाते हैं, amen, आमीन, that power gives you the power so that God will lift you Hallelujah. up before everyone. क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा जब आप नम्र और दीन हो जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा समस्त लोगों के सामने आपको परमेश्वर ऊंचे पे उठा देते हैं। Hallelujah. आमीन। There is no doubt. इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। Hallelujah. आमीन। That is the power of the humbleness in God. और यही तो सामर्थ है परमेश्वर का, जब आप नम्रता और दीनता में चलते हैं। And today I'm going to talk about that secret power. और आज ये गुप्त का जो सामर्थ है, जो ये गहराई की बातें हैं, मैं आज आपसे खुलासा करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Say everybody, I will be honored. आप कहिए कि मुझे सचमुच वो आदर, मान, सम्मान मिलेगा। Say everybody, I will be honored. आप कहिए कि मैं सचमुच अपने आदर को पाऊंगा, मान को पाऊंगा। हालेलुया। Can it be possible, Pastor, that God is going to bless in such a manner that I will be honored? क्या ये संभव है प्रभु की दास की परमेश्वर इस तरह से आशीष देंगे कि मुझे ये मान, सम्मान और आदर मिलेगा? One day Lord Jesus said to his father, एक दिन प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा, Father, पिता, glorify me, मुझे महिमा दे, so that through me you shall be glorified. ताकि मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Our Lord Jesus prayed like that. याद रखिए मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा ही प्रार्थना किया। And today, और आज when we will pray और जब हम प्रार्थना करते हैं in the grace of God, और सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह के तहत, God is going to lift you up सचमुच आपका परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएंगे, before your enemies, आपके दुश्मनों के सामने। शत्रुओं के सामने. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Before your friends, आपके मित्रों के सामने, before your family. आपके परिवार के जनों के सामने। Hallelujah. आमीन। Because through Lord Jesus Christ you became humble. क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा ही आप नम्र हो गए, दीन हो गए। Amen. आमीन। And that humbleness which come through Christ Jesus gives you the power to be honored before the people. हालेलुया। और Hallelujah. वही नम्रता, दीनता जो मसीह यीशु के द्वारा आपको मिलता है मेरे प्रियो, आपको निश्चय ही इस संसार में आदर मिलेगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Say everybody, I will be honored. आप कहिए कि मुझे सचमुच मान, सम्मान और आदर मिलेगा। Hallelujah. आमीन। As I was listening the prayer and worship of Brother Sumit, he said, ये साल में हम प्रसिद्ध होंगे. हालेलुया। और मुझे याद है, मैं अपने बेटे की जब प्रार्थना सुमित को सुन रहा था, तो उसने कहा था कि सचमुच इस वर्ष में हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। Amen. हालेलुया। Yes. ये सत्य है मेरे प्रियो। You will prosper. आप निश्चय ही अपनी तरक्की, उन्नति को देखेंगे। You will get your miracles. आपको आपका चमत्कार मिलेगा। God is going to lift you up. क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो आपको ऊंचे पे उठाएंगे। हाँ. हालेलुया। God is going to honor you. क्योंकि आपका परमेश्वर आपको वो मान, सम्मान और इज्जत देंगे। People will be looking for you. क्योंकि लोग आपको ढूंढेंगे। Hallelujah. आमीन। People will be looking for you. लोग निश्चय ही आपको ढूंढेंगे। They will be seeking for you. वो आपको हर एक यत्न करेंगे आप तक पहुंचने के लिए। Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Because
क्योंकि मेरे प्रियो, God's power is flowing through your life. क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन से बहकर जा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is the heart of our Heavenly Father. और यही तो हृदय है हमारे स्वर्गीय पिता का आपके लिए। That's why we love Jesus Christ. इसी से तो हम अपने प्रभु यीशु को प्रेम करते हैं। In these 20 years, इस 20 वर्षों में मेरे प्रियो, oh, He has honored me like anything. उन्होंने मुझे बहुत आदर, सम्मान और मान दिया है। Amen. आमीन। Every moment, हर एक पलों में, क्षणों में। not once in a year or ऐसा नहीं कि साल में एक बार, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। though I was not worthy for it, जबकि मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ, because I know who I was. क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या था। But लेकिन His grace was so supernatural. हालेलुया, और उसका जो अनुग्रह था वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक था मेरे जीवन में। From the beginning, शुरुआत से ही, that He was pouring in my life, वो शुरुआत से ही उस चीज को मेरे जीवन में उंडेलते रहते थे। and in every seconds, in every moment, और हर एक क्षणों में और पलों में He was lifting us. वो हमें सचमुच ऊंचे पे उठा रहे थे। Hallelujah. आमीन। Though struggle came, जबकि संघर्ष तो आया मेरे प्रियो, persecution also came. यहाँ तक कि सताव भी आया। Hallelujah. आमीन। Trials and tribulations. और हर तरह का परीक्षा, सताव आया मेरे प्रियो। But He was training us so supernatural. हालेलुया। परंतु हमारा प्रभु हमें अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से प्रशिक्षण दे रहे थे। In that training, I came to know who is Jesus. और उसी प्रशिक्षण के दौरान मैं सीखता चला गया कि मेरा मसीह यीशु है कौन। Hallelujah. हालेलुया। How He can overcome these problems. हालेलुया। How He can overcome these problems. That's what I was getting training from Him. और Hallelujah. मैं इस चीज को सीखने लगा यीशु के द्वारा कि हर एक जीवन के परिस्थितियों में, परेशानियों में आप कैसे उबर के बाहर जीत के निकल जाए। Pastor, is it possible for us also to overcome everything? आपके अंदर ये प्रश्न होता है, प्रभु की दास, क्या हमारे लिए भी ये संभव है कि हम इस तरह से निकल आए? Yes. निश्चय ही होता है। Yes. निश्चय ही होता है। Yes, yes, yes. हालेलुया। Only you need some key, that's all. बस थोड़ा सा कुंजी की आवश्यकता है। You need some revelation from the word of God, that's all. परमेश्वर के वचनों से कुछ प्रकाशन की आवश्यकता है, Which I have already learned it in my life. और जिसे तो मैंने अपने जीवन में सीखा है। That's why इसी कारण से मेरे प्रियो, He gave me success. इसी कारण से उन्होंने मुझे सचमुच वो सफलता दिया है, Because of His grace. उसके अनुग्रह ही के कारण। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। The Bible says और बाइबल यूं कहती है in the book of Philippians that I can do all things through Christ Jesus who has strengthened me. फिलिपियों के पत्री में उसके 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि मैं मसीह के द्वारा हर कुछ कर सकता हूँ। Amen. आमीन। So shall we close our eyes and I want to pray so that we are going to hear a valuable word in the mighty name of आइए Jesus. हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, क्योंकि आज तो हम सचमुच उस बहुमूल्य वचनों को सुनने जा रहे हैं। Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, today as I'm going to minister to your people, Lord Father, I pray हालेलुया। that your presence will come in a supernatural way हालेलुया। and let your glory will fall upon your people, Lord Father. I pray let the rivers of grace will flow into each and everybody's life. And I praise you. Thank you, Lord. धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने लोग फेसबुक और प्रभु जूम के माध्यम से तेरे वचनों को सुन रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों के दिल्ली में, विभिन्न प्रांतों में प्रभु, और भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से प्रभु जी जो मुझसे मेरे साथ में वचनों के साथ में जुड़े हुए हैं, और विभिन्न देशों में प्रभु जी जो इसके बाद प्रभु सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज इस कठिन समय में प्रभु अपने वचन के माध्यम से प्रभु आप इनसे बातें करें और इन्हें अपनी आत्मा से भर दें लॉर्ड। एक ऐसी शक्ति इनको मिलने पाए ताकि परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह भरपूरी से बहने पाए लॉर्ड। एक नई ताकत इन्हें मिल जाए, एक नया सामर्थ इन्हें मिल जाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति हमेशा
यीशु के नाम से होती रहे लॉर्ड। इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, शहर से लॉर्ड सारे देश विदेशों के लिए प्रभु जी तेरी शांति की घोषणा करता हूँ लॉर्ड। अरे गड़बड़ी करने वाली शक्तियां यीशु नासरी के नाम से चली जा। हालेलुया। प्रभु जितने परिवार प्रभु इस वक्त जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जीआरपीसी के फैमिली के एक एक व्यक्ति प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज उन पर आप दया कर दें लॉर्ड, और अपने वचनों के द्वारा बातचीत करके प्रभु उन्हें आप शक्ति और बल प्रदान करें, ताकि प्रभु जी हर एक गड़बड़ी दूर हो जाए और शांति प्रबल हो जाए वहां पर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। Say everybody praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Glory to Jesus. सचमुच प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले। Can I see your hands क्या मैं please? आपके हाथों को देख सकता हूँ? Oh wonderful. Hallelujah. You people are looking very beautiful. सचमुच आप सारे लोग बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। And coming Sunday we are going to meet once again. और फिर से रविवार आ रहा है और हम फिर से आपसे मिलेंगे। Amen. आमीन। And we are going to pray. और हम मिलके प्रार्थना करेंगे। And God will do wonders and miracles into your life. और सचमुच हमारा परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य और चमत्कारों को करेंगे। Sickness will go away from your house. और सचमुच बीमारियां आपके घर से चली जाएगी। Financial trouble will go from your हर house. एक आर्थिक तंगी आपके घर से चली जाएगी। And blood of Jesus will take over your families. और सचमुच मसीह यीशु का लहू आपके घर परिवार पे प्रभुता करेगा। Court cases will be solved in Jesus' name. जितने भी कोर्ट का केसेस है वो यीशु के नाम से खत्म हो जाएगा। But in this week I'm praying that God is going to give you a supernatural increase. और मैं इस सप्ताह खास ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से एक अलौकिक बढ़ोतरी दे। In every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। As I was talking last Sunday about submissive. और पिछले रविवार जब मैं ये बात कर रहा था कि समर्पण होना। Amen. आमीन। In that submissive I was just talking about obedience to righteousness and slaves to righteousness. और मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि समर्पित जब आप होते हैं तो आप आज्ञाकारिता में चलने लगते हैं, फिर आप धर्मी हो जाते हैं, और जब इस तरह से जब आप धर्मी होते हैं तो आप संपूर्ण रीति से धार्मिकता के गुलाम हो जाते हैं। Why you need to become slaves to righteousness? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या ये जरूरी है कि हमें सचमुच धार्मिकता के लिए धर्मी होना और धार्मिकता का गुलाम होना जरूरी है? Yes. ये सत्य है और जरूरी है। So that we all can walk in the spirit, not walk in flesh. तो इसकी वजह से हम सारे लोग आत्मा में चलने पाएंगे, शरीर में नहीं चलने पाएंगे। And we can have the access of the holiness of God. तो याद रखिए, इसकी वजह से परमेश्वर की जो पवित्रता है उसके नजदीक आप जा पाएंगे। See, in our flesh there is no holiness. याद रखिए, अगर शरीर के विषय में कहें तो उसमें कोई पवित्रता नहीं है। Because it is a sinful body. क्योंकि जो हमारा शरीर है जिसका निर्माण हुआ है वो पाप से निर्माण हुआ है। But लेकिन there is an anointing from the Lord Jesus Christ. लेकिन एक अभिषेक मौजूद है प्रभु यीशु के द्वारा, through the righteousness of God, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा, that when it will come to our flesh will become holy. Hallelujah. और वही जब अभिषेक हमारे शरीर में आता है तो वो पवित्र हो जाता है। It is just like a soap rubbing our body and making cleansing ये ourselves. एक साबुन के ही समान है कि जिस तरह से आप उसे लगा के अपने शरीर को धोते हैं। Amen. आमीन। And through that anointing we are cleansed. Hallelujah. उनके उसी अभिषेक के द्वारा हम साफ सुथरा किए जाते हैं। Amen. आमीन। As we keep our body cleansed by using soap or shampoo or water or और whatever. जिस तरह से जब हम स्नान करते हैं तो अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी से लेकर साबुन से लेकर और हर एक सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, But लेकिन sometimes the dirt will go and uncleanness will go. तो हमारे शरीर पे जो जमा जो गंदगी है वो सारी चीजें चली जाती हैं। But this body is recognized through our mouth. तो याद रखिए, इस शरीर की जो पहचान होती है वो आपके जबान से होती है, Amen. मुख से निकले शब्दों से होती Through है, our tongue. Okay. आपके जीभ से निकले हुए शब्दों से होती है। Because the Bible says
there is power in the tongue which can give life also, which can release और death बाइबल also. साफ हमें इस बात का खुलासा करता है कि हमारे जीव में सामर्थ है, वो जीवन और मृत्यु की घोषणा करती है। Amen. आमीन। And God has given us the power to speak life. लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया है कि हम जीवन की ही घोषणा करें। So that's why we need humbleness. और इसके लिए हमें जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें नम्र और दीन होना ही है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Now body needs humbleness. तो अब शरीर को ये आवश्यक है कि वो सचमुच नम्र हो। We are submissive, and through that submission God helps us to come into humbleness. तो याद रखिए, जब हम समर्पित होते हैं, उस समर्पण के द्वारा परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम नम्र हो जाएं। Hallelujah. आमीन। Just now I'm going to right now I'm going to read one scripture from James chapter 4 and verse 6. और इसी वक्त एक वचन को मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 6वें वचन को। But he gives us more grace. That's why scripture says God opposes the proud but shows favor or grace to the humbles. हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, याकूब उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि वह हमें और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण से तो पवित्र शास्त्र यूं कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र यानी दीनों के ऊपर कृपा यानी अनुग्रह देता है। Hallelujah. आमीन। Say everybody, God gives us more grace. आप कहिए कि परमेश्वर हमें और भी अनुग्रह देता है। Amen. आमीन। I don't know what you are going through, मुझे नहीं मालूम कि आप अभी किस परिस्थितियों से गुजर रहे but हैं, God is going to give you more grace. लेकिन परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह देंगे। What happens when grace comes? आपको अब ये समझना जरूरी है कि जब अनुग्रह आता है आपके जीवन में तो क्या होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Only in our hard circumstances, grace always comes and work in your life. याद रखिए, जब हमारी कठिन परिस्थितियां होती है तो अनुग्रह आके हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। When you receive grace, जब आपको अनुग्रह मिलता है, it gives you the power of Jesus. तब वो आपको यीशु का सामर्थ्य देता है। It gives you the strength of Jesus. तब आपको यीशु का ताकत मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। Whenever I use this word grace, तो जब भी मैं इस शब्द अनुग्रह का इस्तेमाल करता हूँ, it is called the unmerited favor of God. हालेलुया, इसको जो हम कहते हैं उसको ये कहते हैं कि एक ऐसा अनुग्रह है जो परमेश्वर का जो हमें मिला है, जिसे हम सचमुच अनमोल कृपा कहते हैं। एक ऐसी कृपा Amen. जो अनमोल है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। And that all comes when you go through a very tough time. और याद रखिए, ये अनमोल कृपा आपको तब मिलता है जब आप अपने जीवन के कठिन समय और परिश्रम से गुजर रहे होते हैं। And this grace always kills the flesh, kills our own strength, kills our thoughts, our sinful mind. और ये अनुग्रह क्या करता है? हमारे शरीर को, हमारे शारीरिक इच्छाओं को, हमारे पापमय सोच को उसका कत्ल करता है, यानी उसको खत्म करता है। Yes. आमीन। Hallelujah. आमीन। It crucifies. यानी रखिए, इसका ये अर्थ है मेरे प्रियो कि इसके द्वारा आपकी जितनी भी शारीरिक इच्छाएं, पाप में स्वभाव, उसको आप क्रूस पे चढ़ा देते हैं। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। So that God's power can flow through you and possess your things. तो याद रखिए, परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा बहकर आपकी जो आशीष है उसको जाकर आप हासिल कर लें। So let me read one more scripture, okay? आइए मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। I will go detail, don't worry about मैं it. विस्तार से जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि निश्चय ही आप आज सीखेंगे। Amen. आमीन। Say everybody, I need more grace. आप कहिए कि मुझे मेरे जीवन में और भी अनुग्रह की आवश्यकता है। Why God wants to give you more grace? अब एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अभिषेक अनुग्रह क्यों देना चाहते हैं? So that you can become humble
and so that through humbleness God will exalt you. Hallelujah. हालेलुया, ताकि सचमुच आप नम्र हो जाए, दीन हो जाए और परमेश्वर आपकी नम्रता, दीनता के कारण आपको ऊंचे पे उठा दें। Now let's come to a scripture where you will see what power grace is carrying. अब आपको एक वचन की ओर ले जाता हूं जिससे आप ये जानने पाएंगे कि अनुग्रह आपके जीवन में कौन सा सामर्थ्य देगा। Ephesians chapter 2 and verse 8. इफिसियों की 2 अध्याय के 8 वचन में यूं लिखा है, For it is by grace you have been saved. हालेलुया, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Now listen very अब बड़े carefully. ध्यान से सुनिए आप लोग। When I read this English version of the word of God, और जब मैं अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ता हूँ परमेश्वर के वचनों को, the Bible says it is by grace you have been saved. और इसमें लिखा है क्योंकि विश्वास ही, विश्वास दे, क्योंकि अनुग्रह ही के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। Amen. Through grace you see, by grace you have been saved through faith. और सबसे जरूरी है कि अनुग्रह ही के द्वारा, हालेलुया, और विश्वास के द्वारा आपका उद्धार यानी आप बचाए गए हैं। Amen. आमीन। इसको मैं थोड़ा और हिंदी में बता देना चाहता हूँ अच्छे से, है ना? ठीक है ना? हालेलुया। इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। Amen. आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर प्रभु के सामने बैठे हैं, आपको पता होगा प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पहले आपका जीवन क्या था। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमारा पाप में स्वभाव, हमारी जिंदगी की मुश्किलें, समस्याएं क्या थी, हम अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु ने ऐसा ग्रेस दिया, हालेलुया। और उस ग्रेस में यानी उस अनुग्रह में इतनी सामर्थ थी कि हम बच गए। कब? जब हमने विश्वास किया। हालेलुया। समझ में आया आपको? हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह दिया और हमने विश्वास किया और हम बच गए। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? जिसका ये अर्थ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पहले तो आपको अनुग्रह देता है, उस अनुग्रह ही की वजह से आप विश्वास करते हैं, और जैसे आप विश्वास करते हैं आप बचाए जाते हैं। Praise the Lord. आमीन। So आमीन। I don't know what you are going through. मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप किस कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। Whether it comes about your family problems, चाहे वो आपके परिवार की परेशानियां क्यों ना हो, whether you're in your office, whatever you're going या through, आपके नौकरी के दफ्तर में कोई परेशानी क्यों ना हो, whether it is court case, चाहे वो सचमुच कोर्ट में लगा कोई केस ही क्यों ना हो, or maybe with your children, या हो सकता है आपके बच्चे को लेकर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, or with your business or whatever you और हो can. सकता है आपके व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी से आप गुजर रहे हो। Praise the Lord. Praise the Lord. But today the Lord says, I will give you more grace. लेकिन आज प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि सचमुच आज मैं तुझे और भी अनुग्रह दूंगा। Why He wants to give us more अब grace? यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वो और भी ज्यादा अनुग्रह आपको क्यों देना चाहते So हैं? that you can be saved from that calamity. ताकि वो जो आपके जीवन का जो परिस्थिति है, जो आपको नीचे की ओर और दुख की तरफ ले जा रहा है, उससे आप बचाए जा सके। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। So that you can be protected from that disaster. ताकि आपके जीवन में जो ये परेशानी है, जो ये नाश है, उससे आप बच जाए। So that sickness which is there right now, it will not go towards death, but it will go towards life. ताकि Hallelujah. वो जो बीमारी आपके शरीर में है वो आपको मृत्यु में ना ले जाके वरन आपको जीवन दिला दे। Praise the Lord. आमीन। That is the power of the grace of God. तो यही तो वो सामर्थ है परमेश्वर के उस अनुग्रह का। And that's why the Bible says it is through faith we will be saved. और इसी से बाइबल कहती है कि पहले तो अनुग्रह दिया जाता है, उस अनुग्रह में जब आप विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाते हैं। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। See, blindly you never receive grace, okay? याद रखिए, अंधे की तरह अगर आप सोचे कि अरे अनुग्रह मिल गया ले लेते, ऐसा नहीं होता। Amen. आमीन। When grace has been given, जब अनुग्रह हमें दिया जाता है you feel it. आपको महसूस होता है। सच है मेरे प्रियो, Hey, come on. ये सच है। Come on, say. आपको ये महसूस होता है कि Say. Wait. Just a moment. Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग समझ गए? When grace comes,
जब अनुग्रह आता है you feel it. आपको महसूस होता है, That someone is by my side. आपको ये महसूस होता है कोई तो मेरे साथ खड़ा है, Someone is touching me. कोई तो मुझे स्पर्श कर रहा है, Someone is strengthening me. कोई तो मुझे ताकत दे रहा है। It is no one, it is only the Lord Jesus. ये और कोई नहीं सिवाय मसीह यीशु के, It is the Holy Spirit. वो स्वयं पवित्र आत्मा है। आमीन, आमीन। Say everybody, I need that. आप कहिए कि मुझे इस अनुग्रह की आवश्यकता है। Say, Lord Jesus, through you only I can overcome. आप कहिए प्रभु यीशु मसीह तेरे ही द्वारा मैं जीतूंगा। I can win this battle only through अपने you. जीवन का जो युद्ध है मैं तेरे द्वारा ही जीत सकता हूँ। आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। How many of you believe that? आप में से कितने लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं? Maybe you might be saying, oh, you don't have a job, and you say, oh Lord, only through you I can get this job. हो सकता है आपके जीवन में नौकरी नहीं है, परंतु आप कह सकते हैं प्रभु यीशु, परंतु तेरे द्वारा तो मुझे नौकरी मिल रहा है। Amen. आमीन। Today I can say, through you only, Lord, things can be supernatural. और आज मैं भी कह सकता हूँ प्रभु तेरे ही द्वारा मेरे जीवन में हर चीज अलौकिक और दिव्य हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Say everybody, I need that grace. आप कहिए कि मुझे उस अनुग्रह की अपने जीवन में आवश्यकता है। I want to correct you here. Grace never comes to do sin. याद रखिए इस चीज को आप लोग समझ जाइए। अनुग्रह इसलिए नहीं दिया जाता कि आप पाप में यानी आप पाप को करते रहें। Grace always has been given to overcome the sin, not to promote the sin. याद रखिए अनुग्रह इसलिए आपको दिया जाता है कि ताकि आप उस पाप से बाहर निकल आए, ना कि आप और पाप करते चले जाएं। So that's why we always ask the Lord, have mercy. इसी Hallelujah. से हम परमेश्वर से यानी प्रभु यीशु से ये कहते हैं प्रभु दया दे दे। And then when we ask the mercy, He comes and He touches us. और जब हम उनकी दया को मांगते तो वो आकर हमें स्पर्श कर लेते हैं। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। How many of you understand? कितने लोग समझ पा रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Now the it Lord. says, through grace you have been saved, but through faith. और यहाँ पे वचन लिखा है अनुग्रह के द्वारा ही आप बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा। Amen. आमीन। So when you feel it, जब आप महसूस करते हैं you have to say, oh, yeah, you have to use your faith. तब जब आप महसूस करने लगते हैं उसके अनुग्रह को, तब अपने विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। Hallelujah. आमीन। Don't look around here and there. इधर उधर ना देखिए, You just use your faith. अपने विश्वास का वहाँ इस्तेमाल कीजिए And you must declare it. Yes, Lord, it is done in Jesus' name. और अपने मुंह से कह दीजिए हाँ प्रभु हो गया यीशु के नाम से। What will happen when you declare it? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब आप अपने मुख से घोषणा करेंगे तो क्या होगा? Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Now see, listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। The Lord came and touched you by His grace. यीशु मसीह ने आकर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको स्पर्श किया। And the moment when you believed it, और जैसे आपने ये विश्वास कर लिया, He came inside वो आपके अंदर आ गए। and He allowed your mouth to speak life. तब उन्होंने आपके जीभ को ये आज्ञा दी कि अब तू जीवन की घोषणा कर। Hey, praise the Lord. Hallelujah. Come on, come on, come on. हालेलुया। You know, when you are there in the church, what happens when Lord touches you? What you will say? Oh, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. याद है Hallelujah. जब आप कलीसिया में मौजूद होते हैं और जब प्रभु आपको छूता है तो आपके मुंह से निकलता है प्रभु तेरी प्रशंसा हो। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। How come those words comes? तब एक पे पूछता हूँ आपसे ये प्रश्न, तब ये शब्द आपके मुंह से कैसे निकल पाता है? Because He has given you so much of grace. That's why you are saying it. क्योंकि Hallelujah. आपको इतना अनुग्रह दिया गया है कि आपके अंदर से ये निकलता है हाँ प्रभु। Oh, praise the Lord. हालेलुया। Sometimes you go through a very tough time, but when in the church you forget everything. Hallelujah. आप कठिन समय से तो गुजरते हैं, परंतु जब आप प्रभु की उपस्थिति यानी कलीसिया में मौजूद होते हैं तो आप सारे दुखों को भूल जाते हैं। How come you forget everything? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, कैसे भूल जाते हैं आप?
Amen. आमीन। In your house you are very much disturbed, but when you are in the church you are so graciously you said, I'm in Hallelujah. peace, Pastor, I'm in घर में तो बड़े peace. परेशान होते हैं, परंतु परमेश्वर के भवन में ये घोषणा करते हैं, अरे मैं तो बड़े शांति और आनंद में हूँ। How come you are moving in peace? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि उस शांति में आप कैसे चल रहे हैं? Because God has given you so much of grace, because He loves you. क्योंकि सचमुच आपके परमेश्वर ने बहुत ज्यादा अनुग्रह आपको दिया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। And that's why और इसी कारण से I pray that grace will be there in your life forever. और मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रियो कि सचमुच प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके जीवन में निरंतर बना रहे। Say everybody, praise the Lord. आप कहिए प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। I'm very happy to see you when I see you in Zoom, no? I am so inspired to minister to the word of God. और मैं बड़ा आनंदित होता हूँ क्योंकि मैं जूम के माध्यम से आपको आपके घरों से जब देखता हूँ तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ। I mean, I'm not seeing the people who are in the Facebook because I can't see their comments. But thank God, hallelujah. God bless them, hallelujah. और सचमुच फेसबुक के दर्शकों को तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु मैं जब उनके लिखे हुए उन कमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रभु हमारे साथ है और वो भी हमारे साथ। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. So many of our brothers and sisters are there in the Facebook also. Amen. Thank you. और God हमारे bless you. बहुत सारे भाई बहन सचमुच इस वक्त फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष देवे And God will give you more grace. और परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देंगे। Hallelujah. आमीन। Hope you are supernaturally blessed by the word of God. और मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अलौकिक और दिव्य रीति से परमेश्वर के वचनों से आशीष को पा रहे हैं। Amen. आमीन। Today I'm going to share something from my life और एक बार फिर से मैं अपने जीवन के द्वारा आपको कुछ बताना चाहता हूँ so that you will understand more about this grace. Hallelujah. ताकि इस अनुग्रह को आप और भी ज्यादा समझ पाएं। Amen. आमीन। I mean, almost like 13 or maybe 15 years back. 15 वर्ष पूर्व Amen. I was in Andhra Pradesh and I was preaching the word of God. मैं आंध्र प्रदेश में था और परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा था And I was on my way to my sister's house. और मैं अपनी बहन के घर की तरफ में रवाना हो चुका था And I was on a train. और मैं एक रेलगाड़ी की यात्रा में था And the moment my sister house was very near, I was very near to her railway station. There was a sudden backache came to me. और जब मैं अपनी बहन के घर के बहुत नजदीक आ गया रेलवे स्टेशन के पास तो अचानक से मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हुआ And I could not able to stand also. इतना ज्यादा दर्द था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था And suddenly I just looked to the Lord Jesus. और अचानक से मैंने प्रभु यीशु को देखा And I said, Lord, have mercy. और मैंने कहा प्रभु मुझ पे दया कर दे It is so terrible pain. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दर्द है And I can't means to take the suitcase also. और जो मेरा सामान था मैं उसको भी नहीं उठा सक रहा था And slowly I came to that door of that bogie and then I got down at that और station. रेल के डिब्बे के उस जगह से जहाँ मुझे उतरना था मैं वहां तक तो किसी तरह से आ पाया And there was so much of pain in और my. बहुत दर्द था मेरे कमर में I don't know how come that pain came. और मुझे नहीं मालूम कि अचानक से वो दर्द कहाँ से आ गया And while when I was having that pain, it was so terrible that even I thought that sit down in that railway station and I must call my sister and then I can go. और इतना ज्यादा दर्द था कि मुझे लगा कि मैं अपनी बहन को खबर कर दूं कि वो सचमुच रेलवे स्टेशन पे आकर मुझे घर लेके जाए But लेकिन I thought of going alone. फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे अकेला ही जाना चाहिए And tears were there on my eyes. और मेरे आंखों में आंसू थे It was a very painful journey. और वो बहुत दर्द वाली भरी यात्रा थी And the moment when I came to my sister's house, और जैसे ही मैं मेरे बहन के घर में आया and I said, I just want to go and rest. और मैंने कहा कि मुझे बस जाना है और आराम करना है And the moment when I slept on that bed, you know, I just cried out before the Lord and I said, Lord, please heal me.
और जैसे मैं बिस्तर पे लेटा और मैंने रोकर पुकार के प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चंगाई दे दे। There was so much of tears in my eyes. बहुत ज्यादा आंसू मेरे आंखों में थे। And I said, have mercy, और Lord. मैंने कहा, प्रभु मुझ पे दया कर दे Please heal me, और Lord. मुझे चंगा कर दे। It is so terrible pain. ये बहुत ज्यादा दर्द है। And suddenly, और अचानक से the hand of Jesus came अचानक से यीशु का हाथ आता है and he touched my back. और उसने मेरे कमर को छू लिया। And the moment when he touched my back, और जैसे ही मेरे कमर को छू लिया, I feel that the pain is going away. और मुझे महसूस हुआ कि दर्द मेरे अंदर से निकल के जा रहा है। And that particular time, और उस खास समय में when that pain was going away, और जब वो दर्द मेरे अंदर से जा रहा था, I said, Lord Jesus, मैंने कहा, प्रभु यीशु, don't take away that hand. और मैंने कहा, अपने उस हाथ को मुझसे दूर ना करना Don't take that hand away from my back. और अपने हाथ को मेरे कमर से ना हटाना। And suddenly that anointing was so powerful. और अचानक से वो अभिषेक इतना सामर्थी था I felt that I covered in that anointing. और मुझे लगा कि मैं उस अभिषेक में ढाका गया हूँ। And I was so much covered in that love. और प्रभु के प्रेम में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ढाक लिया गया है। And I was covered in that grace. और उनके अनुग्रह से मैं सचमुच ढाका गया हूँ। Hallelujah. आमीन। And I went into deep sleep. और मैं उसी वक्त एक गहरी नींद में चला गया। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। And the moment when I went to the deep sleep, और जैसे ही मैं उस गहरी नींद में गया, after 2 hours I woke up. और 2 घंटे के बाद जब मैं उठा, And when I woke up, और जब मैं उठ गया, my pain disappeared. मेरे को कोई दर्द नहीं थी। वो Hallelujah. दर्द मेरे शरीर से जा चुका था I was so happy. और मैं बहुत खुश हो गया। But लेकिन one thing which I have really experienced on that particular day, एक चीज जो मैंने अपने उस खास दिन में जो अनुभव किया, touch of Jesus. ये अनुभव किया कि यीशु मसीह का स्पर्श। Sometimes some pain comes to experience the Lord Jesus Christ. कई बार कुछ दर्द हमारे जीवन में आता है, परंतु उस दर्द में आप यीशु मसीह का अनुभव करते हैं। And I never forget that particular hand of Jesus. और मैं नहीं भूलता यीशु के उस खास हाथ को। Till now I am testifying about it. अभी तक मैं इस बात की गवाही देता रहता हूँ। That was the supernatural grace of God. सचमुच परमेश्वर का ये अलौकिक अनुग्रह ही तो है। And when that touch came, और जब वो स्पर्श मुझे मिला, and I allowed the Lord to touch me more. और तब मैंने प्रभु को आज्ञा दे दिया कि प्रभु मुझे और भी ज्यादा स्पर्श कर ले। You only have touched my back. You have all the right to touch my whole body. प्रभु Hallelujah. तूने तो सिर्फ मेरे कमर को ही स्पर्श किया है। प्रभु ये शरीर तेरा है, तो मुझे स्पर्श कर ले। And that day I said, my body is the temple of the Holy और उस दिन Spirit. मैंने कहा, प्रभु मेरा सचमुच शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। That was the grace. यही तो अनुग्रह है जो आप ऐसा कह पाते हैं। In that grace I have learned a lot. इसी अनुग्रह में मैंने बहुत कुछ सीखा। And in that touch there was a supernatural strength in my body. और उस स्पर्श में एक अलौकिक सामर्थ्य मेरे शरीर में था, ताकत था। Hallelujah. आमीन। So that when you pray, you will overcome everything in Jesus' name. ताकि जब आप प्रार्थना करें तो आप हर कुछ चीज से बाहर निकल के आ जाएं यीशु के नाम से। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। And that particular day, और उस खास दिन को when the Lord was touching me, जब प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे थे, I started believing more. तब मैं और भी ज्यादा विश्वास करने लगा। And I said, Lord, और मैंने कहा, प्रभु यीशु, don't take away this hand, मैंने कहा अपने इस हाथ को मत हटाना, because this hand is comforting me like anything. Hallelujah. क्योंकि ये हाथ मुझे बहुत ज्यादा ही आराम पहुंचा रहा है। Hallelujah. आमीन। I feel that someone is very, very close, और मुझे महसूस होने लगा कोई तो मेरे बहुत नजदीक है, who is carrying me, जो मुझे मेरी परवाह कर रहा है, who really loves me, जो निश्चय ही सचमुच मुझसे प्रेम करता है, and who wants to do good things for me. और जो मेरे जीवन में अच्छी चीजों को करना चाहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। That is wonderful. ये तो सचमुच अद्भुत है। Hallelujah. आमीन। That is called more grace. यही कहलाता है और भी ज्यादा अभिषेक। Amen. आमीन। And आमीन। after that I have traveled a lot. Amen. उसके बाद मैंने बहुत यात्रा की। Amen. आमीन। But in every time He was helping us. और हर एक समय में वो मेरी मदद करते रहे हैं। Hallelujah. आमीन। It just started with a hand.
और ये सारी चीज की जो शुरुआत हुई बस एक उनके हाथ की ही वजह से। And today, और आज I got the opportunity to see him face to face. और आज मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं उनको मुखामुखी देखूं I can see his fullness. और उनको संपूर्णता में यानी संपूर्ण यीशु मसीह को मैं देख सकता हूँ। One day God gave me little grace. एक दिन तो प्रभु ने मुझे थोड़ा सा अनुग्रह दिया And when I used that grace, और उस अनुग्रह का अपने जीवन में जब इस्तेमाल किया that grace has helped me to see his fullness. और उस अनुग्रह ने मुझे सचमुच मदद किया कि मैं संपूर्ण यीशु को देख सकूं। That's why the Bible says, इसी से बाइबल यूं कहती है, the only son who came from the Father was full of grace and truth. हालेलुया, कि सिर्फ एकमात्र पुत्र जो पिता से आया वो बहुतायत के अनुग्रह और सत्य से भरा था। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Hope you are blessed. मैं आशा करता हूँ कि आप आशीषित हुए हैं। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। If you are going through a tough time, अगर आप सचमुच कठिन समय से गुजर रहे हैं, invite him and tell him to touch आप you. उनको बुलाइए और कहिए, प्रभु यीशु मुझे स्पर्श कर ले, I need your touch. मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, I need your strength. मुझे तेरी ताकत चाहिए। Through my strength, I cannot overcome this. मेरी ताकत से तो मैं नहीं जीत सकता, And it is not possible to defeat these things. Hallelujah. क्योंकि ये संभव नहीं है कि जिन चीजों से मैं गुजर रहा हूँ उसे मैं हरा सकूं। Hallelujah. आमीन। I need your help. मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। That particular day, I asked the help of Jesus उस खास दिन में मैंने यीशु की मदद ली, because there was no hope. क्योंकि उस समय कोई आशा नहीं नजर आ रही थी, Only pain was there. सिर्फ दर्द था And it was so terrible. और वो बहुत ज्यादा था। Amen. आमीन। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, God gives you more grace परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देते हैं in your difficult times. आपके कठिन समय में, In the time when there are a lot of mountains are there और before जब you. आपको ये लगता है कि अब आपके जीवन में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए He हैं, will come. वो नजदीक आते हैं, He will give you strength. वो आपको ताकत देते हैं And you will walk in strength to strength. और सचमुच आप चलने लगते हैं उनके उस ताकत में और भी ज्यादा आगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed? क्या आप आशीषित हो रहे हैं मेरे Are you learning something क्या today? आप कुछ सीख पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hope you are rejoicing in the Lord. मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। I want to give you something which you can help you. Okay. मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ जो आपकी मदद करने पाएगा। Remember, prayer life always plays a very powerful role to recognize the grace of God in our life. याद रखिए, आपके प्रार्थना का जो जीवन है वो बहुत ही सामर्थ्य कार्य अदा करता है इस बात को जानने के लिए कि आपके जीवन में वो अनुग्रह मौजूद है। Without prayer, don't expect grace to come into your life. याद रखिए, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है तो अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा। Yes. ये सत्य है। Amen. आमीन। Grace will be given when you submit yourself or when you will give time to pray. Hallelujah. ये अनुग्रह आपको तभी मिलेगा जब आप समर्पित होंगे और समय निकालेंगे प्रार्थना करने के लिए। Amen. आमीन। When Lord Jesus touched me supernaturally in those days, I used to pray a lot. याद रखिए, जब भी प्रभु यीशु मसीह मुझे उन दिनों में स्पर्श करते थे तो मैं और भी ज्यादा प्रार्थना करता था। He saw my prayerful life. उन्होंने मेरे प्रार्थना के जीवन को देखा है। He saw my suffering. उन्होंने मेरे दर्दों को भी देखा है। He understand me. उन्होंने मुझे समझा है। And he saw that how much I am seeking him. और वो ये देखते थे कि मैं उनको कितना ज्यादा ढूंढता था। He was seeing that how much I love him. और वो ये भी देखते थे कि अब मैं उनसे कितना प्यार करने लगा। That's why his grace came supernaturally to bless me at a time when I was in need. Hallelujah. सचमुच उनका अनुग्रह उस समय आता था मुझे आशीष देने के लिए अद्भुत रीति से जब मुझे जरूरत होती थी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। It always helps us to move forward in faith. और यही अनुग्रह हमेशा आपकी मदद करती है इस बात के लिए कि आप हमेशा विश्वास में चलने पाएं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Number 2, और दूसरी बात, prayer life और प्रार्थना का जो जीवन होता है always help us to build relationship with the Holy Spirit. और वो हमेशा एक रिश्ते को तैयार करता है कि आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ होने पाए। When you pray,
जब आप प्रार्थना करेंगे you start building relationship with the Holy Spirit तब आप क्या करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को बनाने लगते हैं, so that the Holy Spirit can fill His word and righteousness in our life. ताकि पवित्र आत्मा क्या करते हैं, अपने वचन को और अपनी धार्मिकता को आपके अंदर डालते हैं। Amen. आमीन। Why He does all these things? तो पवित्र आत्मा ऐसा क्यों करते हैं? So that He can remove the fear, number one. ताकि सबसे पहली बात कि वो आपके अंदर जो डर बैठा है उसको निकाल देते He हैं, will remove doubt. आपके अंदर जितने भी शक है, शंका है, उसको निकाल देते He हैं, will remove unbelief. और अविश्वास की आत्मा जो आपके अंदर है उसको भी निकालते हैं, And then He will remove the pride. और जो घमंड है आपके अंदर कार्य करता है उस घमंड को वो निकाल देते Praise हैं। the Lord. आमीन। Number one, fear. पहला तो याद रखिए, सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकालते हैं वो डर की आत्मा, Number two, unbelief. अविश्वास की आत्मा, Number three, doubt. और शक की आत्मा, Number four, pride. और घमंड की आत्मा। Hallelujah. आमीन। Why He wants to remove this thing? आप पवित्र आत्मा इन चार चीजों को सबसे पहले क्यों निकालना चाहते हैं? So that ताकि grace of God can come and overtake your spirit. ताकि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आकर आपकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले ले। Hallelujah. आमीन। Grace. अनुग्रह, Grace will come. अनुग्रह आएगा। Amen. आमीन। When it will come? कब आएगा? When you will not walk in fear. तब आएगा जब आप डर में नहीं चलते, When you will not walk in unbelief. तब आएगा जब अविश्वास में आप नहीं चलते। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। If you are walking in fear, अगर आप डर में चलते हैं, if you are walking in unbelief, अगर आप अविश्वास में चलते हैं, you are not qualified to receive the grace of God. तब तो आपको सचमुच भी अनुग्रह ना मिलने पाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। I was qualified because I was not walking in fear that time. और सचमुच जो मुझे परमेश्वर के द्वारा शिक्षा मिला उसके द्वारा मैं संपूर्ण रीति से निपुण हो गया कि मुझे सचमुच वो अनुग्रह मिलने पाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So many times people lose that grace because they are walking in fear. कई बार लोग अपने जीवन से इस अनुग्रह को जाते हुए देखते हैं क्योंकि वो डर में जीते हैं। Amen. आमीन। Yes, we are weak people. ये सत्य है कि हम कमजोर लोग हैं। Sudden time problems comes and fear also comes. कई बार कुछ परेशानियां ऐसी आती है तो डर भी आता है, But लेकिन grace always helps us. अनुग्रह हमेशा हमारी मदद करता है। Holy Spirit always helps us. पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करते हैं। He will see whether how you are responding. वो ये देखते हैं कि इस परिस्थिति में अब तू कैसे कार्य करेगा। Are you declaring in faith or are you just declaring unbelief? विपरीत परिस्थिति में वो देखते हैं कि क्या तू अब भी विश्वास में चलेगा या अविश्वास में चलेगा। Amen. आमीन। If you are ready to walk in faith, अगर आप तैयार हैं कि विश्वास में चलें, He will give you more grace. तब वो और अनुग्रह दे देंगे। आमीन। आमीन। If you are ready to move, not in doubt, अगर आप तैयार हैं कि हम शक में ना चलेंगे, मुझे कोई शंका नहीं छुएगी। Hallelujah. हालेलुया। You have no doubt. आपके अंदर कोई भी शक नहीं है, पर God will give you more grace. तो याद रखिए आपका प्रभु यीशु आपको और अनुग्रह देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। If you are not walking in pride, अगर आप घमंड की आत्मा में नहीं चलते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। What will happen? आपको मालूम फिर क्या होगा? God will give you more grace. पर आपका प्रभु आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देंगे। Amen. आमीन। So many times people lose that grace upon grace because they have not overcome the fear, they have not overcome the doubt, they have not overcome the unbelief. कई बार लोग सचमुच नहीं जीत पाते हैं इस तरह के परिस्थितियों में क्योंकि उनके जीवन से डर नहीं जाता, शक नहीं जाता और अविश्वास नहीं जा पाता है। Amen. आमीन। So today you got the secret. Hallelujah. आज आपको सचमुच एक कुंजी मिल रहा है। Amen. एक गुप्त रहस्य की बातें मिल रही हैं। Hallelujah. आमीन। For example, if you are going through a tough time right now, उदाहरण के तौर पर अभी जैसे इस वक्त आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, maybe you are going through a painful situation. हो सकता है कि आप दर्दों से गुजर रहे हैं। Now what you will do? अब आप क्या करेंगे? You will go to your room and pray. पहले तो आप ये करेंगे कि अपने कमरे में जाके प्रार्थना करेंगे। You know how you will pray? आपको मालूम तब आप कैसे प्रार्थना करेंगे? Because you are in pain, you know. क्योंकि आप दर्द में हैं।
Hallelujah. आमीन। The moment when you pray, आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे, you have to say, Lord Jesus, have mercy upon आपको me. सबसे पहले ये कहना है, प्रभु यीशु मुझ पे दया कर दे। I know you will do it. मुझे मालूम है कि तू सब कुछ कर देगा। All things are possible. हर कुछ तेरे द्वारा संभव है। All things are possible. हर कुछ तेरे द्वारा ही संभव है। And I know you are going to make a way. और मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए मार्गों को निकाल देगा। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। What will happen? आपको मालूम तब क्या होगा? The prayer of which as you have offered to receive the help, He will come and He will pour more grace. तो याद रखिए, जो प्रार्थना आपने उनके सामने किया है, उस वजह से वो आपके पास आके आपको और भी ज्यादा अनुग्रह दे देंगे। And okay, that's how you receive the grace. Okay. और इस तरह से पहले तो आप अनुग्रह को पालेंगे। अगर If you are praying आप प्रार्थना कर रहे हैं that Lord, why this thing has happened? ये सब कह के कि अरे प्रभु ये सब चीज क्यों हो रहा है, Why I have to see this? ये सब मुझे क्यों देखना पड़ेगा। In every prayer you are asking why. हर एक प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर एक प्रश्न उनके ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु, ऐसा क्यों है प्रभु। आपको पता था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और ये भी बोल देते हैं, आपको तो मालूम है, फिर ये क्यों दर्द है, मैं इससे क्यों गुजर रहा हूँ। Why should I go through this pain? आप कह देते हैं, अरे प्रभु हम इन दर्दों से क्यों गुजरे, Why should I suffer? मैं क्यों दर्द उठाऊं। Why my son or my daughter is in this area? फिर आप ये भी कहते हैं, प्रभु मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तरह की परिस्थिति में क्यों है। Why and all. हमेशा क्यों 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 का प्रश्न लेके प्रभु के पास बैठ जाते हैं। Why this thing is not been done? फिर आप कहते हैं, अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ। I love you, Jesus. मैं तो यीशु तुझसे प्रेम करता I हूँ, was expecting so many things from you, मैं तो तुमसे बहुत सारी चीजें का उम्मीद कर रहा था प्रभु, but you have not done anything. पर प्रभु तूने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। Remember, याद रखिए मेरे प्रियो, that is not a prayer. ये प्रार्थना नहीं है। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। That is your reaction, okay? ये आप अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं प्रभु को। Amen. आमीन। So now it all depends upon how you pray. अब ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमीन। Yes, of course, you are in a tough time. ये मैं मानता हूँ मेरे प्रियो कि आप कठिन समय में हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। But when you come and pray, लेकिन जब आप आते हैं और प्रार्थना करते हैं, you have to be more gracious. आपको और भी ज्यादा अनुग्रहकारी यानी नम्र और दीन होना पड़ेगा। You should know how to ask. आपको ये मालूम आना चाहिए कि आपने यीशु से कैसे मांगते हैं। That's why. इसी कारण से Let me tell you. मुझे आपसे कुछ कहना है। Amen. आमीन। When I have encountered my Lord Jesus Christ, और जब मैंने सचमुच अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ मिलने का मुझे जब मौका मिला, when I have received the Holy जब Spirit, मैंने पवित्र आत्मा को पाया, so many times the Holy Spirit has taught me how to pray. और कई बार पवित्र आत्मा ने स्वयं मुझे सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। Sometimes the Holy Spirit has corrected me. This is not the way to pray. कई बार मेरे प्रियो स्वयं पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, यहाँ पे तुम गलत हो, ऐसे नहीं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. आमीन। When you go before the throne of grace, you have to ask in gracious manner. याद रखिए, जब उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाके आप जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े ही अनुग्रहता से, नम्रता से, दीनता से मांगिए। And you should have faith in asking also. और विश्वास भी होना जरूरी है जब आप मांग रहे होते हैं। In that time, उस समय God gives us more grace. परमेश्वर हमें और अनुग्रह देते हैं And He teaches us. और वो हमें सिखाते हैं। Amen. आमीन। When we have no doubt. वो तब हमें सिखा पाते हैं जब हमारे अंदर सचमुच शंका यानी शक नहीं होता। Sometimes I am not prepared also. कई बार तो हम तैयार भी नहीं होते। Hallelujah. आमीन। But Holy Spirit comes. और पवित्र आत्मा आते हैं And He
and he encountered in such a way and trained in such a way so that I can offer my prayer rightly before God. और मुझे इस तरह से सिखाते हैं, मुझे इस तरह से बताते हैं कि मैं सही तरीके से प्रभु के सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रख दूं। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। That's what the Holy Spirit has been given to us. इसी से तो पवित्र आत्मा हमें इस मदद के लिए दिया गया है मेरे प्रियो। Amen. आमीन। Use that Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा को जो आपको दिया गया उसका इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में। That was the promised Spirit from the heaven. याद रखिए ये सचमुच वायदा का आत्मा है जो स्वर्ग से हमें दिया गया Through Lord Jesus Christ. यीशु मसीह ही के द्वारा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And the moment when you learn how to और pray जैसे ही मेरे प्रिय जब आप सीख जाते हैं कैसे प्रार्थना करें and how to react on every issues. और हर एक जो आपका प्रार्थना निवेदन में किस तरह से बातचीत करें, Amen. आमीन। God will give you more grace. तब आपका जो प्रभु यीशु है वो आपको और ज्यादा अनुग्रह दे देगा। Hallelujah. आमीन। The last part is pride. I said no very मैंने clearly. आखिरी में कहा घमंड की आत्मा। That's why we have to be more submissive. इसी से मेरे प्रियो समर्पित होना जरूरी है। Amen. आमीन। Submissive always help you not to move in pride. तो याद रखिए अगर आपकी एक आदत बन चुकी है आत्मिक रूप से कि आप समर्पित होते हैं तो मजाल नहीं कि घमंड की आत्मा आपको छू ले। Amen. आमीन। Yes, of course, there is pride in our flesh. ये सत्य है कि हमारे शरीर में वो घमंड की आत्मा मौजूद है। But through the fullness of Christ Jesus our Lord, हालेलुया। लेकिन मसीह यीशु की संपूर्णता पूर्णता की वजह से we become more humble. हम और भी नम्र और दीन हो जाते हैं। Sometimes we have challenges before our family. कई बार हमारे परिवार के सामने भी चुनौतियां होती हैं। Sometimes family members they say, you are praying, what Jesus is doing. कई बार तो परिवार के लोग यहाँ पे ये भी सुना देते हैं बड़ा तो प्रार्थना करते हो, हुआ क्या कुछ। And sometimes it really hurts you. और कई बार जब वो इस तरह के शब्द को बोलते हैं तो आपको दर्द होता है मेरे Oh, प्रियो। it really pinches you. ये आपको सचमुच चुभता है। Hallelujah. आमीन। Because you are very emotionally attached with Lord Jesus Christ. कि आप सचमुच अपनी भावनाओं से प्रभु यीशु से जुड़े हैं। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And sometimes you get mad also. और कई बार तो आप गुस्से में पागल भी हो जाते हैं। And you always want to prove that yes, it is truth. और आप हमेशा ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रभु सत्य है, He will do it. वो करके रहेगा। And sometimes you uses your own strength और also. फिर इस वजह से आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। And sometimes you uses your own mind. फिर तो वहाँ पे दिमाग चलने लगता है। Hallelujah. आमीन। And the more you use your mind, your own strength, you will walk in flesh. तो याद रखिए जहाँ आपका दिमाग चलने लगेगा वहाँ पे अनुग्रह नहीं वरन आपका शरीर कार्य करेगा। Amen. आमीन। You will walk in the flesh. तब Hallelujah. आप शरीर में चलने लगेंगे। Now how you can deal this? अब इस चीज से आप कैसे निकलेंगे, बचेंगे? Amen. आमीन। If somebody says like that, okay? अगर कोई आपको इस तरह से कह देता है Somebody comes and encounter you, और कुछ तरह से आके ऐसे शब्दों को आपको बोल जाता है, just be quiet. बस एक ही चीज तो सीख लीजिए, चुप हो जाइए ना, Just be quiet. चुप हो जाइए, Don't reply them. बिल्कुल जवाब ना दीजिए। Don't try to teach them. उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, They are fool. वो मूर्ख लोग हैं, They will say whatever their mind will उनको say. जो मन करेगा वो बोलेंगे। But लेकिन you have the power. आपके पास तो वो ताकत और सामर्थ्य दिया गया है। Amen. आमीन। One day you will get the victory. एक दिन आप जीत जाएंगे मेरे प्रियो। But लेकिन ignore that. ऐसे लोग, उनकी बातों को आप जाने दीजिए, Ignore them. बिल्कुल जाने दीजिए Don't get hurted. और उन शब्दों को लीजिए भी मत ताकि आपका हृदय टूट जाए या आपको दर्द हो, मत लीजिए ऐसे शब्दों को। And allow the Lord to make you more humble and say, Lord, have mercy. और प्रभु को कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में तू और काम कर कि ताकि मैं नम्र हो जाऊं और सचमुच तेरी दया मुझ पे आ जाए। And to forgive them, you know. ताकि उस दया में प्रभु से आप उनके लिए माफी मांग ले और प्रभु उन्हें क्षमा भी कर दे। That's what the Lord Jesus has done it. यही तो प्रभु यीशु ने किया था। He said, these people have no idea what they are doing. क्योंकि यीशु को मालूम था, इसी से उन्होंने कहा था कि इन लोगों को नहीं मालूम है पिता कि ये क्या कर रहे हैं। Amen. हालेलुया। He said, Father,
हालेलुया। They have no idea what they are doing. उन्होंने साफ कहा था, हे पिता तू उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। That heart we should have. यही हृदय तो प्रभु यीशु चाहता है कि आपके अंदर हो, And through grace we can receive that heart. और अनुग्रह के द्वारा ही आप पा पाएंगे। Hallelujah. आमीन। If you are having that heart, अगर ये हृदय, यीशु वाला हृदय अगर आपके अंदर मौजूद है, remember, याद रखिए, you are not praying. Jesus is praying through you. तो याद रखिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा प्रार्थना कर रहे And हैं, that prayer will be answered one day. और उन प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिन निश्चय ही आपको And मिलेगा, one day God is going to lift you up. और एक दिन प्रभु आपको ऊंचे में उठाएंगे। Remember, याद रखिए when you are quiet, जब आप शांत होते हैं, when you are silent, जब आप सचमुच शांति में होते हैं। hallelujah, आमीन, amen, आमीन, hallelujah. आमीन। Remember याद रखिए, that there is someone who is watching from up. याद रखिए स्वर्ग से कोई तो आपको देख भी रहा होता है, Your silence plays a very powerful क्योंकि role. जब आप उन दर्दों में, उन शब्दों में शांत होते हैं तो कोई आपको देख रहा होता है, And he will be ready to lift you up any moment. और वो तैयार हो जाता है कि किसी भी क्षण में वो आपको ऊंचे पे उठा देंगे। Your silence can bring power of grace in your life. हालेलुया। आपका जो शांत होना, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, अनुग्रह का, वो आपको मिल जाता है। Sometimes you might be feeling, oh, how can pastor I will be silent? It's so embarrassing situations before me. कई बार आप कह सकते हैं, प्रभु के दास मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, परिस्थितियां तो इतना ज्यादा मुझे शर्मिंदा कर देता है कि मैं क्या करूँ। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। But there is power in that silence. लेकिन याद रखिए अगर आप शांत हैं, अगर आप चुप हैं, आपके जीभ और मुंह बंद है, तो आप उस सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। And humbleness always plays a very powerful role to make us quiet. हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने हृदय से नम्र हैं, दीन हैं, तो ये शांति, आपका चुप रहना आपको मदद कर देगा। And remember, और याद रखिए, grace always help us to become more humble. तो याद रखिए जब आपको अनुग्रह मिलता है तो आप और भी ज्यादा नम्र और दीन हो जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। That's how the Holy Spirit teaches us. इसी तरह से तो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। Amen. आमीन। To become more humble. और भी ज्यादा हमें नम्र और दीन बना देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। The Lord was putting in my heart, प्रभु मेरे हृदय में ये डाल रहे थे, as you are going through tough time, जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, God is teaching you to overcome it. और प्रभु आपको सिखाते हैं कि उस कठिन परिस्थितियों से आप बाहर निकल के कैसे आएंगे, Or you are going to win it. और आप किस तरह से इन परिस्थितियों पे जयवंत हासिल करेंगे। Hallelujah. आमीन। That's why God wants to give you more grace. इसी से परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो आपको और भी ज्यादा अनुग्रह दे दें। Hallelujah. आमीन, Praise the Lord. आमीन। So when you ask Him, ताकि जब आप उनसे मांगे, say, Lord, please help me. जब आप ये कहे कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, Amen. आमीन। Before asking, मांगने से पहले you check yourself. अपने आप को जरा टटोल लीजिए। Whether are you in fear or not? पहले तो ये देखिए कि आप डर में तो नहीं है कहीं, Whether you are in pride or not? कहीं आप घमंड में तो नहीं है, Whether are you in doubt or not? कहीं आपके अंदर शक तो नहीं है। If you have an unforgiven heart also, अगर आपके हृदय में एक ऐसी बात है कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, please forgive it आप immediately. माफ कर दीजिए, उसी वक्त माफ कर दीजिए, Please क्षमा कर forgive दीजिए। it. Don't take any grudges. कोई भी अपने हृदय में ऐसी कोई भी बात को ना रखिए, आप क्षमा कर दीजिए। Grace cannot be given in an unclean vessel. Hallelujah. याद रखिए अगर आपका बर्तन साफ नहीं है, अगर आपके हृदय में किसी को क्षमा करने की आत्मा नहीं है, तो मेरे प्रियो अनुग्रह नहीं दिया जाएगा। I have seen many people who have moved in doubt or fear or unforgiveness, pride. They have lost the favor of God. मैंने देखा है ऐसे कई लोग जो शक में चलते हैं, डर में चलते हैं, घमंड में चलते हैं, और उनके अंदर क्षमा करने की आत्मा नहीं होती है, तो सचमुच मेरे प्रियो अनुग्रह नहीं कार्य करता, अनुग्रह नहीं मिलता ही नहीं है। Amen. आमीन। एक मिला, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसके बाद में उसको उन्होंने खो दिया। अनुग्रह दिया गया, परंतु इन सब चीजों की वजह से अनुग्रह चला गया। Amen. आमीन। If today I am receiving grace, अगर आज मैं अनुग्रह को पाता हूँ, I am walking in the favor of तो God. याद रखिए मैं परमेश्वर की कृपा में ही चलता हूँ। How come I am walking in this? अब मैं कैसे चल पाता हूँ कृपा में? It is not because I used to pray and I am reading the word of God. I am very close to Jesus. No. ऐसा नहीं है
है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या वचन पढ़ रहा हूँ, ये मैं प्रभु के बहुत नजदीक हूँ। No, no, no. ऐसा नहीं है। That has to be there. वो तो करना ही है, But लेकिन I have to prepare myself to forgive people. क्योंकि मुझे ये जरूरी है कि मुझे लोगों को क्षमा करना है। I have to be an unforgiven heart. मेरे पास ये जरूरी है कि मेरा क्षमा करने वाला हृदय नहीं होना चाहिए। मुझे सबको क्षमा करना है। Yes, I have to forgive everyone. Okay. मुझे हर को क्षमा करना है। Hallelujah. I cannot keep myself an unforgiven person. और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लोगों को क्षमा ना करूं। मैं नहीं चल सकता। Because if I will not forgive, I will lose that grace. तो याद रखिए, अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो वो अनुग्रह चला जाएगा। Yes. हालेलुया। So that's why it is very, very important. तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो आपके जीवन में। It is not that to forgive our children or our family members, whoever. सिर्फ अपने प्रियजन को ही क्षमा ना करें। हर एक वो व्यक्ति जिनकी वजह से आपके जीवन में दर्द हुआ है, क्षमा कर दीजिए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Forgive them. माफ कर दीजिए। Hallelujah. माफ कर दीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। Then you are entitled to receive that grace. तो यह याद रखिए, तभी वो अनुग्रह आपको दिया जाएगा। Amen. आमीन। And Bible says God gives more grace. और परमेश्वर का वचन लिखा है, बाइबल यूं कहती है कि सचमुच परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देंगे। Because I have forgiven people. क्योंकि Hallelujah. मैंने लोगों को क्षमा कर दिया है। That's why God is giving more grace. इसी से परमेश्वर और भी अनुग्रह देते हैं। And I have decided myself not to move in pride. और मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं घमंड में ना चलूंगा। And I have decided myself that I will not move in unbelief. मैं अनबिलीफ में, अविश्वास की आत्मा में भी ना चलूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Take it out from your mind. अपने दिमाग से, अपने हृदय से इन बातों को निकाल दीजिए। Hallelujah. आमीन। No matter who have hurted you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाया। Hallelujah. आमीन। Just forgive it बस क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, and move forward. आगे बढ़ जाइए। If you will not forgive, अगर आप क्षमा नहीं कर पाएंगे you are creating a mountain before your life. तो अपने जीवन के सामने आप पहाड़ पे पहाड़ बनाते चले जाएंगे। And if you are still doubting, और अगर अभी भी आप शक में, शंका में चलेंगे, you are going to move in the waves and the storms. याद रखिए तूफान चलता रहेगा, परिस्थितियां ऐसी खराब बनी रहेंगी। Amen. आमीन। If you are moving in pride, अगर घमंड की आत्मा में चलेंगे, hallelujah, आमीन, you have to prepare yourself so that you आपको अपने can आप को तैयार करना so है, that you can be in humbleness of God. ताकि इस समय आप सचमुच परमेश्वर की नम्रता में चलने पाए। Amen. आमीन। Why we have to do this? ये सारी चीजें करनी क्यों आवश्यक है? And through the Lord Jesus Christ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा we remove everything. हम हर चीज अपने जीवन से निकाल पाते हैं। Hallelujah. आमीन। And we receive grace upon और grace. हम अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह को पाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। And when we receive grace, और जब हम उस अनुग्रह को पाते हैं, it gives me power. आपको तब वो सामर्थ मिलता है। More grace means more strength. याद रखिए, अगर ज्यादा अनुग्रह है तो ज्यादा ताकत है। More strength to handle every situation. और इतना ज्यादा ताकत मिलता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसमें सचमुच जयवंत होके निकलेंगे। More grace means ज्यादा अनुग्रह का मतलब है strength and power of Jesus. जिसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह का सामर्थ और यीशु मसीह का ताकत Comes in our life as an anointing of His presence. और वो हमारे जीवन में आता है एक अभिषेक के द्वारा, यानी उनकी उपस्थिति के द्वारा। That is called the presence of the Holy और Spirit. इसी को हम कहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। When it comes, जब ये आता है, it will take few moments. ये कुछ ही पल लगता है And it will take you to the knees. और वो तुरंत आपको घुटनों पर ले आता है। And it will allow you to pray. और वो आपकी मदद करता है कि आप प्रार्थना कर सकें। And when you prayed, और जब आप प्रार्थना करते हैं, remember, याद रखिए, your miracle will come. अपने आप आपका चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। In my 20 years, और मेरे 20 वर्षों की सेवा में I saw him. मैंने उनको देखा है। He came. वो आए हैं। He helped me in prayer. उन्होंने मेरी मदद की है प्रार्थना में। Hallelujah. आमीन। He helped me to cry before God. और उन्होंने मदद किया कि मैं अपने आंसुओं को सचमुच परमेश्वर के महापवित्र सिंहासन के पास ले जा सकूं। He helped me how to pray. उन्होंने ये भी सिखाया कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। He helped me how to preach also. और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि प्रचार भी कैसे करनी है। And today, whatever I am preaching, it is only because of him.
याद रखिए, आज जो भी मैं प्रचार करता हूँ, मैं सचमुच प्रभु यीशु यानी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया हूँ। Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। That is called grace. यही तो अनुग्रह है। Amen. आमीन। He helped me so that I can become a blessing for others. और उन्होंने मेरी मदद की ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाऊं। And today while I'm preaching, और जब मैं ये प्रचार कर रहा you हूँ, are hearing, आप जब ये सुन रहे हैं, God is lifting me before you. तब और प्रभु मुझे भी आपके सामने ऊंचे पे उठा रहे हैं। Why? क्यों मेरे प्रियो? Because He gave me more grace. क्योंकि उन्होंने मुझे और भी अनुग्रह दे दिया And He made us humble. और उन्होंने हमें नम्र कर दिया And He gave the power. और उन्होंने वो ताकत दे दिया And He used us और उन्होंने हमें इस्तेमाल किया so that He can lift us before everyone. ताकि वो हमें सभी के सामने ऊंचे पे उठा सके। Praise the Lord. Praise the Lord. But all the glory and honor to Him. और सारी आदर और महिमा सिर्फ प्रभु यीशु ही को मिले, Because He has poured His grace. Hallelujah. क्योंकि उसने अपने अनुग्रह को हमें दे दिया है। Praise the Lord. Hope you हालेलुया। are blessed. मैं Hallelujah. आशा करता हूँ कि आज आप आशीषित हुए हैं। Amen. आमीन। Oh, God will give you more grace. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देंगे। Oh, that is the more grace will help you to take into supernatural तो increase. याद रखिए, जितना ज्यादा अनुग्रह मिलेगा, आप सचमुच उस दिव्य और अलौकिक बढ़ोतरी को देखेंगे। Is it not, completely wonderful in the presence of God? क्या ये अद्भुत नहीं है मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति के सामने? Amen. आमीन। Humble yourself before the Lord and He will lift you और up. सचमुच अपने प्रभु के सामने अपने आप को नम्र यानी दीन कर लीजिए, वो आपको ऊंचे पे उठा In देंगे। these days I am learning to become more humble. और मेरे प्रियो, इन दिनों तो मैं और भी सीख रहा हूँ कि ज्यादा नम्र हो जाऊं। Hallelujah. आमीन। I want to become more humble. हालेलुया। और भी नम्र और भी दीन। You know what will happen? आपको मालूम तब क्या होगा? When we become more humble, और जब हम और नम्र और दीन हो जाते हैं God will lift us. और परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठा देते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। There are people, लोग और भी हैं, they never say anything. वो कुछ बोलते तो नहीं है, They are very silent, बहुत शांत तो होते हैं, but लेकिन they never talk. वो बात नहीं करते हैं। I'm not talking about that type of humbleness, okay? ये कोई हम्बलनेस नहीं, यानी ये कोई नम्रता दीनता नहीं है। No. आप समझ लीजिए, No knowledge, nothing. कोई ज्ञान नहीं है वचनों का। Amen. Amen. And just, okay, sometimes, people are so much oppressed. Okay. लोग इतना ज्यादा दबे होते हैं कि बस हाँ ठीक है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि दुनिया ऐसी है, ऐसा ही जीना है, यही तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको नम्रता नहीं कहते हैं। नम्रता हमेशा जो परमेश्वर के ओर से आती है, वो हमें जीत की ओर लेके जाती है। हालेलुया। हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार करती है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो नम्रता आती है, वो हमें इतना तैयार करती है कि बड़े बड़े पहाड़ को हम गिरा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि he was humble and obedient to the death on the cross. बाइबल साफ कहती है, यीशु मसीह नम्र था, आज्ञाकारिता में था, मृत्यु तक के लिए। Amen. आमीन। He was so humble and obedient to the death on the cross. वो इतना ज्यादा नम्र और दीन और आज्ञाकारिता में समर्पित था कि उसने अपने आप को नम्र दीन कर लिया जब तक कि उसकी मृत्यु सलीब पे ना हो गई। उसकी नम्रता ऐसी सामर्थ्य थी चुप हो कि अगर वो चुप होता था तो उसके चेहरे पे महिमा होती थी, रोशनी होती थी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी चुप्पी में भी लोग उस पर आकर्षित हो जाते थे। हालेलुया। आपकी नम्रता में लोग आकर्षित हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपकी नम्रता में लोग खिंचाव में आ जाना चाहिए। हालेलुया। आपकी नम्रता में लोग Thank you, आपके Jesus. द्वारा सीखना चाहिए। Yes. प्रेज लॉर्ड। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं उस नम्रता की बात कर रहा हूँ जो बाइबल में कहती है। हालेलुया। ऐसा नहीं, ना ज्ञान है ना कुछ है, सिर्फ दुनिया है। हाँ भैया, मैं चुप रहूं तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी लोग ऐसी बात करते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव वाइब्स
नेगेटिव वाइब्स, यहाँ तो बड़ा नेगेटिव वाइब है। अरे भाई, कोई तुम्हारे अगल बगल में करंट चल रहा है क्या? ना 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 ना, कोई करंट नहीं है, ये तुम्हारा सोच है। कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव बोलता रहूंगा तो पॉजिटिव एनर्जी बनती रहेगी। नहीं 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 नहीं, ये कोई करंट वाला खेल नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन है। परमेश्वर के वचन से हमें इतनी सामर्थ मिलती है कि हमारे जीवनों में हमेशा जीवन होता, पॉजिटिव नहीं, जीवन होता है। आप लोग पॉजिटिव बात नहीं करते, आप लोग जीवन की बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रभु की आत्मा में कहते हैं तो वो एक दिन पूरा होके रहता है। हालेलुया। इसलिए नम्रता जो है, हमें किसी मनुष्य से नहीं चाहिए नम्रता। यस माय लॉर्ड, हमें चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह से चाहिए नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग बोले, प्रभु तेरी नम्रता मुझे चाहिए। आप कहिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मुझे तेरी नम्रता चाहिए। कभी कभी लोग नम्रता को कहाँ ढूंढने लगते, ओ वो व्यक्ति कितना नम्र है ना, कितना दीन है, बेचारे कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्या वो नम्रता चाहिए आपको? नहीं। हमें किसकी नम्रता चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह की नम्रता चाहिए। हालेलुया, सबमिसिव वाली नम्रता। यस। If today if you will ask me which humbleness you need, I will say yes, the humbleness of Jesus Christ. हालेलुया। अगर कोई मुझसे पूछे कौन सा नम्रता चाहिए तो मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ यीशु मसीह वाला नम्रता चाहिए। And the Holy Spirit has given me that humbleness. और पवित्र आत्मा ने उस नम्रता को दिया है मेरे प्रिय। Amen. आमीन। That's why इसी कारण से God always lifts us. Hallelujah. इसी कारण से परमेश्वर हमेशा ऊंचे पे उठाते हैं। And all the glory to Jesus. और सारी महिमा प्रभु यीशु को। Humble yourself before the Lord and He will lift you up. और सचमुच अपने आप को अपने प्रभु के सामने नम्र कर दो, दीन कर दो, वो आपको ऊंचे पे उठा देंगे। Whatever trouble you are going through, जो भी आप परेशानियों से, कष्टों से गुजर रहे हैं, whatever situation is कोई there, भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, I pray today, मैं आज प्रार्थना करता हूँ God will give you more grace. प्रभु आपको और भी अनुग्रह देवे। That grace will be so supernatural ताकि वो अनुग्रह इतना ज्यादा अलौकिक और दिव्य हो, that when you will pray with that grace, ताकि जब उस अनुग्रह में आप प्रार्थना करें, remember, याद रखिए, miracles will happen. चमत्कार अपने आप होंगे। Within few days things will be different. कुछ ही दिनों में परिस्थितियां बदल जाएंगी। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Restorations will happen. अपने आप परिवारों में पुनर्स्थापित हो जाएगा हर एक क्षेत्रों में। Amen. आमीन। Only you have to believe. सिर्फ आपको विश्वास ही तो करना है। Don't move in doubt, okay? शक में, शंका में ना चले। And don't move in pride. घमंड की आत्मा से भी ना भर के चले। ओ पास्टर जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? This is pride. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Don't use your mind. अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। Don't say कि no pastor, once I was in trouble 10 years back and I got in this way, my problems have been solved in this way. No, don't use your experiences, 10 years experiences. Right now the season is different. Hallelujah. याद रखिए मेरे प्रियो, इस मार्ग में चलने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि नम्रता होना, और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास में चलना। हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Glory to Jesus. आमीन। Amen. आमीन। How many of you are blessed? कितने लोग आशीषित हुए हैं? Glory to Jesus. आमीन। Amen. आमीन। So God will surely bless you. मेरे Okay? प्रियो, निश्चय ही आपका परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. And the Lord will do wonders and miracles into your life. और सचमुच वो आपके जीवन में आश्चर्यकर्म और चमत्कारों को करेंगे। And when you come into your room and when you receive that grace and pray, और जब आप अपने कमरे में आके उस अनुग्रह का पाकर प्रार्थना जब करते हैं, God will give you power to defeat those enemies. और परमेश्वर आपको तब वो सामर्थ देंगे कि उन सारे दुश्मनों को आप हरा दें, सारे शत्रु, सारी शक्तियों को
उस प्रार्थना के माध्यम से आप निकाल देंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय दर्शकों, फेसबुक और जूम में जो देख रहे हैं मुझे, बोलिए प्रभु मुझे और अनुग्रह दे, मुझे आज अपने अनुग्रह से भर दे। फिल मी विथ योर ग्रेस मोर। हालेलुया। Oh, love you, Jesus. Hallelujah. Close your eyes and I'm going to pray right now in the name of Jesus. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Oh, praise the Lord. Hallelujah. Say everybody, fill me, Lord, with your grace. आप कहिए कि हे प्रभु अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए। I need more grace. मुझे और भी ज्यादा अनुग्रह चाहिए। Today I have heard your word. आज मैंने तेरे वचनों को सुना है। And I know my Savior, this grace is going to help me supernaturally. और मुझे Hallelujah. मालूम है मेरे उद्धारकर्ता की यही अनुग्रह मुझे अलौकिक रीति से मदद करेगा। Come on, everybody pray. हम Hallelujah. लोग मिलकर एक आत्मा में प्रार्थना करें। Come on, pray. Hallelujah. Open your mouth and pray. अपने मुखों को खोल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Wonders and miracles are going to happen in your आश्चर्य life. और चमत्कार होंगे आपके जीवन। You will be touched supernaturally. आप सचमुच अलौकिक रीति से स्पर्श किए जाएंगे। The grace of God is a supernatural source to manifest God's power in your life. याद रखिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सचमुच सामर्थ्य रूपी से आपके जीवन में प्रकट होता है। Oh, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up your hands and just अपने pray. हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। Right now I'm going to pray for you. इसी Hallelujah. वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। God's power will come and touch your families. परमेश्वर का सामर्थ आकर आपके परिवारों को स्पर्श करेगा। And God's Holy Spirit anointing will come in your life in a supernatural way. Hallelujah. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में अद्भुत तरीके से Oh, आएगा। glory to Jesus. सचमुच प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। Glory to Jesus. यीशु मसीह को महिमा मिले। Glory to Jesus. यीशु मसीह को महिमा मिले। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु Every यीशु। demonic power will go right now in the mighty name of Jesus. हर एक शैतानी ताकत यीशु के नाम से चली जाए। Every unbelief will go in Jesus' name. हर एक अविश्वास की आत्मा यीशु के नाम से चली Every जाए। pride will go in Jesus' हर name. एक घमंड की आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। Every unforgiven heart will go in Jesus' name. ऐसे हर एक हृदय जो क्षमा नहीं कर पाते हैं यीशु के नाम से चली जाए। Oh, change the life of the people, Lord. Hallelujah. लोगों के जीवन को बदल दे। Forgive their sins, O उनके Lord. पापों को तू क्षमा कर Forgive दे। their iniquities. उनके अधर्म के कार्य को क्षमा कर दे। Oh, wash their sins with the precious blood. उनके पापों को अपने बहुमूल्य लहू से तू धोकर साफ कर दे। If they have not given their life to you, Lord, let their hearts will be received. Hallelujah. Right now in अगर Jesus. तक उन्होंने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया है, सचमुच वो लोग प्रभु अपने हृदय में आपको स्वीकार करें। Oh, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Every sickness will go in Jesus' हर एक name. बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for your touch. तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद। Thank you for your touch. तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद। Thank you for your strength. सचमुच तेरी ताकत के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Oh, Lord, Holy Spirit, ओ सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा touch everyone. हर एक को तू स्पर्श कर ले। Fill you them with your spirit. Hallelujah. अपनी आत्मा से तूने भर दे। Bless them. उन्हें आशीष दे दे। Love them, Lord. उनसे प्रेम कर। As you have spoke today with your valuable words. और Hallelujah. जिस तरह से तूने अपने बहुमूल्य शब्दों से आज सबसे बात किया, Free them from doubt and fear. उनको आजादी दे दे शक से और डर की आत्मा से। Free them from unforgiveness and unbelief. और उनके अविश्वास की आत्मा से, क्षमा नहीं करने वाली आत्मा से उन्हें आजादी दे दे। Oh, Lord Jesus. ए प्रभु यीशु, Bless them with your wonderful grace. अपने सचमुच सुंदर अनुग्रह से उनको आशीष दे दे। Lord Jesus. प्रभु यीशु, So that grace will come upon their life. ताकि वो अनुग्रह उनके जीवन में आ जाए। Grace upon grace. अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह, Grace upon grace. अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह मिले, More grace. और भी ज्यादा अनुग्रह मिले, So that they will get the power to deal each and every situations or difficulties in Jesus' ताकि name. उन्हें सचमुच वो ताकत और सामर्थ मिले कि अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में वो आगे बढ़ते चले जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु I give यीशु। you all the मैं praises. सारी प्रशंसा तुझको देता हूँ। In Jesus' mighty name we यीशु pray. के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। And those who are watching me in Facebook, और जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, and those who are praying for healing, और जो लोग सचमुच अपने चंगाई को मांग रहे हैं, by your wounds, प्रभु तेरे सचमुच कोड़े खाने से, जख्मों से, by your wounds, तेरे जख्मों से
They will be healed now in Jesus' वो name. इसी वक्त चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरे कोड़े खाने से इसी वक्त आप अपनी चंगाई को प्राप्त करने यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद हो चंगाई देने के लिए, धन्यवाद हो अनुग्रह देने के लिए, धन्यवाद हो और अनुग्रह देने के लिए, धन्यवाद हो नई ताकत को देने के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी नई सामर्थ को देने के लिए। हालेलुया। भर दे प्रभु अपनी आत्मा से। हालेलुया। और धन्यवाद हो, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमेन 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 आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। I hope that you are blessed today. मैं आशा करता हूँ आज के वचनों से आप आशीषित हुए हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Amen. How many of you are blessed? Can I कितने see your लोग hands? आशीषित हुए कि मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ God will give you more grace. और परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह देंगे। Yes. हालेलुया। This is the time you have to receive more grace. और ये समय है कि आप और भी अनुग्रह को पाने पाएं। And suddenly you will go and you will pray और अचानक से आप जाके प्रार्थना करेंगे because word has already क्योंकि came. वचन आपको मिल गया है। Amen. आमीन। And you will receive that grace आपको वो अनुग्रह मिलेगा and you will fight your battle और अपने युद्ध को आप सचमुच लड़िएगा and you will win the race. और आप जीत जाइएगा। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And remember, और याद रखिए God will give you victory. और परमेश्वर आपको जयवंत देंगे। Hallelujah. आमीन। You are worshipping a victor God. Hallelujah. याद रखिए आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमेशा जीतता है, जयवंत में रहता है। Hallelujah. आमीन। He will give you victory. वो आपको जयवंत देंगे And that grace is going to help you. और वही अनुग्रह आपकी मदद करेगा। And you will prosper आप बढ़ेंगे and you will be success in every area. और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र और मार्गों में आप जीत जाएंगे And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देंगे And definitely you will come with a testimony. और निश्चय ही आप गवाही के साथ आएंगे। And you will tell me, Pastor, आप मुझे कहेंगे प्रभु के दास, oh, with that word I was so much blessed. और उस वचन से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हो गया And grace has came upon my और life. वो अनुग्रह मेरे जीवन में आ गया And I started praying. और मैं प्रार्थना करने लगा And God answered my और prayer. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है And suddenly change has came in my और family. अचानक से वो बदलाव मेरे जीवन में आ गया Suddenly change has came in my business. और अचानक से वो बदलाव मेरे व्यवसाय में आ गया। Hallelujah. आमीन। That unmerited favor of God has done miracles and एक miracles. असाधारण कृपा आपके जीवन में दे दिया गया। Praise the Lord. आमीन। God bless you. Jesus loves you. प्रभु आशीष दे और यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. आमीन। Amen. God आमीन। bless you. God आमीन। bless you. आमीन। God आमीन। bless you.